Omendra Bhai, what I want to say is that, there is a very big facade that, there is a monster with red eyes and horns, and who is also termed up as Islam or Jihad, however you call it. Both are the same thing, inadvertently. So the thing is that we never studied. I'm talking about the perspective. I mean, as a Hindu, I'm saying we never, were bothered to study the monster that we were breeding, the monster that was growing within us and that was being nourished. And, this entire thing about Hindu subjugation, I think Hindus are being subjugated because it is a part of their jihadi act and movement, and that is even what the heavenly book that came from the sky advocates. So it's better that we study and we bring in new laws. It is better that we study and build a boundary around this civilization which is on the verge of extinction. No, it's Yeah, not I on mean verge of that extinction. We are at war. देखो एक्सटिंक्शन तो बहुत 60 लाख जूस इनसे नहीं मारे जा रहे और 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे ये लोग. हाँ, ये भी बात है. It doesn't Logically, work you're like correct. that. 1400 साल में ये हमें नहीं मार पाए. जब इनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, they could not eliminate us. So now the scales are balanced. There is a 50-50 chance that we might win. Why do we enter this war with this mindset that we are on the verge of extinction? No, ma'am, we are not on the verge of extinction. We are at war. We are at war with some very sick-minded people who think that their belief in one person and one books give them sanction to rape and kill us, and we are going to retaliate them in kind. Yes. As our forefathers and our ancestors did for 1400 years. Bhai, it took 17-18 years for them to convert Persia into Iran. It took them 2 decades to convert Mesopotamia into Iraq. It took them 3 decades to convert entire North Africa into Islamic. How are you Hindu even after 1400 years? Your ancestors must have done something. That is why I am writing a book on the Maharanas of Mewar, whose history these leftists and our Congress people and our jihadi friends have eradicated from our consciousness. Robert was here. I wanted to bring this up, but we didn't have time. If you teach the history of Crusades, the Battle of Tours, how Spain came back after Islamic subjugation, if you teach this to the Westerner people, they will have this intense hatred for people who did what they did to their ancestors. भाई आज हिंदुओं के अंदर जो सिविलाइजेशनल घृणा है इस माफिया के प्रति, वो कहां से आई? हमें तो पढ़ा, स्कूलों में तो नहीं पढ़ाया ना. मुझे तो मेरे दादा ने दी थी खूटी में कि बेटा मलेच्छों का भरोसा कभी मत करना. मेरे बाप ने दी थी मुझे, क्योंकि ये सभ्यतागत है. सभ्यतागत जो बात होती है वो हमारे जीन्स में होती है. मुझे कोई कुरान वुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है. मुझे कोई हदीस वदीस में समय खराब करने की जरूरत नहीं है. मेरे रक्त में है कि जो व्यक्ति किसी पराई स्त्री पर उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ डाल सकता है, उसका वध करना सबसे बड़ा धर्म है. जो समाज अपनी स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाता, वो समाज मर जाए मिट जाए यही शुभ है. द्रौपदी का चीर हरण हुआ था सार्वजनिक, महाभारत में पढ़िए ना. भगवान कृष्ण ने भरी सभा में शपथ ली थी कि जहां गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, आचार्य विदुर, धृतराष्ट्र और इतने महापुरुष बैठे हैं, वहां एक स्त्री का शील भंग करने का प्रयास हो गया.
आपकी निष्ठाएं आपके धर्म से अधिक बड़ी थी, तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं इस पूरी मानवता का ही नाश कर दूंगा। और उन्होंने किया। स्त्री जीवन होती है काली बहन। जीवन की रक्षा करना पुरुष का प्रथम और अंतिम दायित्व है। Should I speak in Hindi or English? I don't know. मतलब आपकी ऑडियंस किस तरह की है? And they are comfortable with both, I think. Are you sure? So yes. वो दोनों I'm comfortable हैं. Okay. तो पुरुष का दायित्व होता है स्त्री की रक्षा, क्योंकि स्त्री जीवन है। I'm not seeing it in the masculine femininity. पुरुष का एक ही कर्तव्य है जो हमारे मेवाड़ के महाराणा निभाते आए 1100 साल तक। बापा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक इनके जूते मारे उन्होंने, एक लड़ाई नहीं हारी उन्होंने। तो जब हम ये सत्य हिंदुओं को बताएंगे कि आप कभी गुलाम नहीं रहे, दिल्ली सल्तनत नाम की कोई जगह नहीं थी, वो एक वामपंथियों का फैलाया हुआ झूठ है। मुगल सल्तनत नाम की कोई चीज थी नहीं, झूठ है, सफेद झूठ। मैं जब उसको इस पुस्तक के माध्यम से सिद्धि कर दूंगा, और ये बात मेरी नहीं है, ये तो हमारे पुरखों को और हमारे गांव के लोगों को तो पहले से पता है। वे नहीं डरते, ये जिहादी फियादियों से नहीं डरते, ये शहर के हिंदू डरते हैं कि नहीं बिजनेस खराब हो जाएगा और दंगे हो जाएंगे, उसको बुरा लग जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, और अरे नहीं यार कौन माथाफोड़ी करे यार, वो कुछ कर देगा। गांव का हिंदू नहीं डरता और 80% तो गांव का हिंदू ही है ना। इसलिए ये जितना हमको उकसाएंगे उतना इनको पता नहीं है कि क्या इनकी दुर्गति करने वाले हैं हम। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जितना उबालते जाएंगे हमें। और बोले, मेरे पास कई वीडियोस आते हैं कि आज देखिए ये कह रहे कि गजवाए हिंद करेंगे और है ना, कह रहे कि 2025 तक या 2030 तक हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे। मैंने कहा यार ये वीडियो जितना बोले ना ये उतना अच्छा है। ये जितना बोलेंगे उतना हमारा काम सरल होता चला जाए। ये मुखौटा तो गिराओ ना यार कि ये शांति का मजहब है। लेकिन मैं धर्म भरम के मामले में इतना ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ पाकिस्तान के हिंदुओं को वहां से निकालने पर है। मैं उन दुखी लोगों को, उन पराजित प्रताड़ित लोगों को एक अवसर जीवन में देना चाहता हूँ कि वे भारत में आए, उन्हें नागरिकता मिले, सम्मान के साथ यहाँ जिए और हिंदू बन के अपना जीवन बिताएं। मेरे जीवन का ये लक्ष्य है और मेरा कोई लक्ष्य नहीं।